Hello, kids. Now we're going to be studying water today, and that is a subject in ASA Happy Home Geography. We're going to be focusing on that. Initially, so the chapter starts with the water cycle. We're just going to do a recap on the water cycle. The first step to the water cycle is evaporation. Then the water turns into vapors, and then it condenses, goes up, turns into clouds. The more it is cooled, it turns into rain or snow. Talking about this chapter, the first thing this chapter talks about is transpiration. Transpiration is a process where plants lose their water and that water turns into water vapors. अब just to give you an example, आप लोगों को पसीना आता है, हमारा जैसे बॉडी में पसीना आता है एंड फिर इधर से वाटर वेपर्स में टर्न हो जाता है. सेम थिंग व्हेन इट हैपेंस विद प्लांट्स, इट्स ट्रांसपिरेशन. Next is infiltration, when the water moves through the top bit of the rock or the soil. थोड़ा थोड़ा जो हम पानी लॉन में देते हैं वो जज्ब होता जाता है, that is infiltration. And the third process is ground water, जिधर से हमें water मिलता है. Ground water is the water जो बच जाता है ज़मीन पे and वो नीचे चला जाता है. Ground water can be extracted through borings, ट्यूब वेल्स, अपना हैंड पंप्स जो गांव में हम देखते हैं कुछ 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 साफ पानी आ रहा है, दैट इज़ ग्राउंड वाटर जो आपका ज़मीन से निकल रहा है. To talk about world's water, 97% of world's water is salt water and 3% is fresh water. Out of that 3%, छोटा सा इतना सा जो 3% है, out of that 79% comes from ice and snow. 20% ज़मीन के अंदर है, which is the groundwater, and 1% is in lakes and rivers, water vapors and clouds हर जगह पे. When water evaporates, जो भी चीज़ साथ होती है वाटर के, it remains back. अगर हम बीचेस पे देखें तो हमें बहुत जगहों पे ना वाइट नज़र आता है बीचेस पे, because that is the salt water में से salt has been left behind and water has turned into water vapors जो कि ऊपर चला जाता है. And that is how every time it rains तो हमें fresh water मिलता है. Same goes for ocean water, sea water as well. नमकीन पानी होता है मगर when it evaporates it leaves the salt behind and the fresh water turns into water vapors. Seas and oceans have a lot of influence on our climate and on our temperature, because जितना ज़्यादा पानी हमारा evaporate होके ऊपर जाता है, it turns into clouds and then it rains and then it snows. अगर water evaporate ना हो तो we don't have no rain, we won't have no snow, जिसकी वजह से dryness बहुत हो जाएगी. Movement in the seas and oceans. So basically I've put a small little video in your notes, please look it up. It's a video from Nemo. उसमें दिखाते हैं कि how water currents work. And वो समंदर के अंदर basically water current is a tunnel type of area जहाँ से गर्म पानी goes towards ठंडा पानी, and wherever it is ठंडा पानी it goes towards गर्म पानी. Just to give you the same concept, हवा के साथ भी यही होता है. If you have air conditioner on in one room, उधर से जो ठंडी हवा है it tries to escape and come to the room जहाँ पे गर्म हवा है, and vice versa कि गर्म हवा tries to go to the place जहाँ पे ठंडी हवा है. Moving further from that, we're going to talk about movement on land. पानी land पे कैसे move करता है. So basically the biggest force out there is the gravitational force, जिसकी वजह से पानी पहाड़ों से नीचे आता है and वो नीचे नीचे आते हुए rivers में जाता है, फिर rivers flow downwards into the seas. Then we come to talk about river basin. River basin वो जगह होती है where all the water is coming from into this river. So basically एक छोटा सा river, Indus river जा रहा है, उसके इधर उधर there are chashmas, there are places जहाँ से ice melt हो रही है, तो वो that place is actually called a river basin. Looking further from that, as we know, पानी अपना पाथ खुद क्रिएट करता है. It creates valleys, flood plains, deltas. जहाँ से पानी आप छोड़ देंगे वो आराम से अपना रास्ता ढूंढ लेगा. कभी कभी पत्थर काटते हुए जाएगा, कभी पत्थरों के ऊपर से जाएगा, कभी पत्थरों के नीचे से चला जाएगा, depending on however what the velocity of the water is, कितनी तेज़ आ रहा है, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहा है. Next we talk about erosion. Erosion happens when breaking down of rocks happens. एक रिवर के अंदर, लेक के अंदर देर आर लॉट ऑफ रॉक्स, एंड वो वाले सारे जो रॉक्स होते हैं वो थोड़ी थोड़ी आफ्टर लाइक अ टाइम दे ऑल स्टार्ट मेल्टिंग, दे ऑल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन. ये तीन तरह से होता है. फर्स्ट इज़ हाइड्रोलिक एक्शन, जिसमें पानी की स्पीड की वजह से पत्थरों में क्रैक्स आते हैं, थोड़े छोटे छोटे पीसेस ब्रेक ऑफ हो जाते हैं. सेकंड इज़ क्रोजन. क्रोजन हैपेंस विद जो छोटे पीस ब्रेक होते हैं वो पानी के अलॉन्ग ड्रैग होते हैं, वो जाके दूसरे पत्थरों में टकराते हैं ज़ोर ज़ोर से. सो दैट इज़ क्रोजन. द थर्ड इज़ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में पीसेस लाइक लाइमस्टोन,
वो डिज़ोल्व हो जाते हैं पानी में, एंड हेंस वी द वाटर वी गेट फ्रॉम अप नॉर्थ इज़ कॉल्ड मिनरल वाटर, क्योंकि उसमें मिनरल्स आ गए। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है अपना, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इनसाइड द वाटर, इसके एक मटेरियल्स जो होते हैं, ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो पत्थर टूट गए एंड एवरीथिंग, दे ऑल आर कॉल्ड अ लोड। ये लोड मूव होता है पानी के अंदर विथ 4 वेज। वन ऑफ देम इज़ ट्रैक्शन। ट्रैक्शन में ये होता है कि बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, दे आर ड्रैग्ड अलॉन्ग द बॉटम ऑफ द रिवर। सबसे नीचे बड़ा पत्थर ड्रैग होता हुआ जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्पेस क्रिएट करता है एंड समंदर बड़ा से बड़ा होता जाता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सेल्टेशन। सेल्टेशन में स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक आर बाउंसिंग अलॉन्ग द रिवर बेड, एंड वो बाउंस करते हुए, हॉप करते हुए, दे गेट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. Third is small tiny rocks, just like particles of salt and sugar. वो float कर रहे होते हैं पानी में and they move from one end to the other. The last way is solution, जिसमें वो dissolve हो जाते हैं and वो dissolve होते हुए पानी के साथ आगे आगे चलते जाते हैं. Next we come to deposition. Deposition वो होता है जिसमें जो भी ये पत्थर होते हैं ना, जो पानी के अंदर we've been talking about, they get deposited somewhere, किसी एक जगह पे जाके रुक जाते हैं. एंड ये क्यों होता है, किस वजह से होता है? क्योंकि जब पानी का फ्लो कम हो जाता है, बड़े पत्थर जाहिर सी बात है रुक जाएंगे. जहाँ पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, वहाँ पे रुक जाएंगे. जहाँ सी में एंटर हो रहा होगा, वहाँ पे भी रुक जाएंगे. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फीचर्स फॉर्म्ड बाय रिवर इरोजन. जैसे हमने बात की, इरोजन इज़ द पार्ट वेयर पानी ज़ोर ज़ोर से लगता है पत्थरों में एंड वो अपना रास्ता क्रिएट करता है. तो यूजुअली वी गेट वैलीज़ लाइक दिस, वी शेप वैलीज़, उसमें से पानी जा रहा होता है एंड वो पानी अपना रास्ता बना लिया होता है. सेकेंड थिंग दैट हैपन्स इज़ वाटरफॉल्स. जब पानी बहुत तेज़ जाता है, जो सॉफ्ट रॉक्स होते हैं, दे गेट ब्रोकन डाउन बिफोर द हार्डर रॉक्स. व्हेन द सॉफ्ट रॉक्स गेट ब्रोकन डाउन, दैट एरिया क्रिएट स्पेस. अब इधर एक, इफ़ यू हैव वन बिग रॉक and then you've got soft rocks right here, the soft rocks kind of dissolve and idhar se a waterfall is created. Next we talk about meanders. Meanders वो कोने होते हैं रिवर के, जहाँ पे रिवर टर्न कर रहा होता है. meanders पे अब दो चीज़ें होती हैं, which is erosion and deposition. दोनों साथ हो रही होती हैं. जब I've put a picture in there as well. The picture is going to be kind of self-explanatory, क्योंकि उसमें ये बना हुआ है कि when water hits one edge of द रिवर साइड, जहाँ पे टर्न होना है, तो वहाँ से वो पत्थर तोड़ता जाता है, अपने साथ लेता जाता है. वाइल एट द सेम टाइम वो जहाँ वहाँ से स्पेस वो क्रिएट कर रहा है अपने लिए मूव होने की. दिस साइड पे जो उसका टर्न की दूसरी साइड है, उधर बाकी पत्थर डिपॉजिट होते हैं, जो भारी भारी पत्थर होते हैं, वो आके रुक के इस साइड में लग के रुक जाते हैं. नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय डेपोजिशन. जो पत्थर छोड़े जाते हैं, उससे क्या होता है? सो बेसिकली अपना डेपोजिशन, फ्लड प्लेन्स बनते हैं, बहुत सारा पत्थर यूँ रह गए, तो ये आपकी जो यूँ करके रिवर की जगह है, वो यूँ हो जाएगी. एंड व्हेन इट इज़ इन अ शेप लाइक दिस, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस कि पानी फ्लो आउट कर जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा. Next, we talk about uses of rivers. Why do we need rivers and uses of rivers? So basically, number one, we can transport goods and humans. बहुत सारे rivers पे boats चलती हैं, ships चलती हैं. Next, we talk about the fact that irrigation is one of the major uses of water. हम जो river पानी आता है, we transfer it to different areas to make the soil fertile, and उधर हम plantation grow करते हैं. Final is generation of hydroelectric power. ये happens inside a dam. So basically, when you see a dam, it is a place where water is stored. उसमें से slowly you release water, it goes out and comes back. अब उसमें जहाँ पे where you release water, there's a turbine. वो turbine, every time water is released, it spins and it creates electricity. If you notice, जब बच्चे होते थे, एक वो छोटे से monkey आते हैं जो ठश 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 करते हैं, उसमें पीछे चाबी होती थी. When you spin that chabi, the monkey runs for a bit. Same concept applies here कि when the turbine is spun, electricity gets produced, जो हम grid में save कर देते हैं, and then we give it to people. Next, we're going to talk about irrigation in the Indus River. Indus River, just to let you guys know, longest flowing river in Pakistan है. It has a lot of barrages. The last barrage that it has, the last barrage, Kotri barrage, sorry, my bad. So Kotri barrage is the last barrage. Barrage is a place where रिवर में एक दरवाज़ा बना दिया जाता है. यू क्लोज द डोर, पानी इस तरफ अब नहीं आ सकता. देन व्हाट हैपेंस इज इट काइंड ऑफ मूव्स इनटू द कनाल्स. छोटे छोटे कनाल बनाए हुए होते हैं, जिससे पानी शाखों में जाता है, एंड शाखों से इट गोज़ इनटू डिफरेंट फार्म लैंड, एंड ऐसे हम फार्म्स में पानी देते हैं.
हमारा पानी आता कहाँ से है फार्मिंग के लिए? 60% ऑफ इट कम्स फ्रॉम द इंडस रिवर, जैसे अभी हम बातें कर रहे थे, एंड देन ओनली 40% कम्स फ्रॉम ट्यूब वेल्स, कम्स फ्रॉम हैंड पम्प्स और ऐसी जगहों से जो कि इज़ ग्राउंड वाटर। इंडस को कहाँ से पानी मिलता है? क्योंकि वी टेकिंग सो मच वाटर आउट ऑफ इंडस, सो बेसिकली इंडस कैचेस वाटर फ्रॉम मेल्टिंग ऑफ आइस फ्रॉम थ्री अदर रिवर्स जो हमारे पास हैं, ओनली रावी एंड सतलज अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में साइन हुई थी, दे हैड बिन गिवन टू इंडिया। उन दोनों समंदर के पानी इंडिया इस्तेमाल करती है फॉर राजस्थान, एंड वो सारा राजस्थान को मिलता है, हमें कुछ भी नहीं मिलता। हर साल इंडस में पानी ऊपर नीचे होता है, द वाटर लेवल्स वेरी बिकॉज एवरी ईयर द क्लाइमेट इज़ डिफरेंट। किसी ईयर सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, मोर स्नो मेल्ट करती है, वाइल इन सम ईयर्स देयर इज़ अ हाई मानसून वेदर जिसमें बहुत सारी रेनफॉल्स होती हैं। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज डिफरेंट एस्पेक्ट्स हर साल पानी इज़ डिफरेंट in each in Indus River. Next, we're going to talk about the fact that we're going to talk about why is the variation in the flow of water a problem. Basically what happens is बहुत बार जब ज़्यादा पानी नहीं होता, कम पानी आता है हमारे पास, we get left with dry canals. Inundation canals is the actual name for it. So when you write in a piece of paper on your exam, so it's inundation canal. ये जब हम देखते हैं inundation canals, इससे हर कनाल हमारा ड्राई हो जाता है एंड हमारी ज़मीनों को फिर पानी नहीं मिलता, एंड growing plants and everything gets very very hard. How do we overcome this problem? We create dams to store water. We've got Terbela Dam, जो कि was 1976. We've got Mangla Dam, which was 1967, and then we've got Chashma Barrage, which is 1971. In सब में 10% of Indus's water is stored. 60% of Indus's water हम use कर लेते हैं into our farmlands. Moving further from there, sharing the irrigation water ये कैसे होती है? अपना if we look at sharing of irrigation water, initially कोई plan नहीं होता था, लोग used to call this concept वाराबंदी, जिधर हर कोई डिसाइड करता था कि भाई 2 घंटे मेरे पास पानी आएगा, 2 घंटे आपके पास आएगा, 2 घंटे आपके पास आएगा. So they had created this amongst themselves. Okay, they used to tell how to divide water amongst themselves. Recently water allocation accord एक organization बनाई गई थी which decides how much water everyone gets, क्योंकि अपना वाराबंदी में some people were unfairly treated while others got a lot of water. मगर even in WAA, which is water allocation accord, उसमें भी बहुत फड्डे होते हैं, fights होती हैं, because not every person deals fairly. So that's everything to do with water. Thank you for listening to me. Have a lovely day. Bye bye.